Hello everyone, this is Anush Srivastava. This is the third chapter of class 8. Name of chapter is square and square roots. In this video we will discuss about how to find square and square roots of numbers. First we will discuss what is the definition of square and what are squares. We have studied some numbers which can be obtained by raising rational number to integral exponent. When the exponent is 2, the number obtained are called square. By this definition, it is clear, as we have discussed in the chapter exponent, that was second chapter of the class 8, that is exponent, where we have studied about exponent and base. If we are saying 2 to the power 4, then 2 is base and 4 is a exponent. If we say 3 to the power 2, then it will be the square of 3. The number obtained called square. अब जैसे मैंने क्या बताया आपको कि कोई भी नंबर है और उसकी पावर अगर 2 लिखी हुई है या एक्सपोनेंट अगर 2 लिखा हुआ है तो दैट विल बी द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर. हियर written the statement 2 into 2 is equal to 4 is called square of 2 is 4. Square of 2 is 4. This is written here, square of 2 is 4. We can say square of 3 9. We can say square of 4 16. Here some numbers are given, you can find the square of these number, like square of 1 is 1, square of 2 is 4, square of 3 is 9, square of 4 is 16, square of 5 is 25, square of 6 36, square of 7 49, square of 8 64, square of 9 81, square of 10 100, square of 11 121, square of 12 144, square of 13 169, square of 14 196, square of 15 225, square of 16 256, square of 17 289, square of 18 324, square of 19 361, square of 20 400, square of 21 441, square of 22 484. Okay, the next परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर्स. जैसे कि अभी हमने नंबर्स डिफाइन किए हैं कि कैसे भी किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं. अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं. देखिए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और अ स्क्वायर नंबर इफ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर. मतलब कोई भी जो नंबर है वो अगर क्या लिखा हुआ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर, मतलब वो नेचुरल नंबर का स्क्वायर लिखा है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखिएगा 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, यानी कि जो 1 है वो 1 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, 25 किसका है 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 49 किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है. अगर हम बात करते हैं 85 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो दैट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. जैसे एग्जांपल लेते हैं 95 इज आल्सो नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, सो इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर. जैसे एग्जांपल लेते हैं 121 इज द स्क्वायर ऑफ 121 is that number, this is the square of 11, so 121 is the square of 11 and 121 is the perfect square. Next, some examples are given here. 1 is equal to 1 square, 4 is equal to 2 square, 9 is equal to 3 square, and so on. Thus 1 4 9 16 25 36 49 etc are perfect square. The third topic is, अब देखिए क्वेश्चन है, अब इसको कैसे पता करेंगे कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. देखिए इज 196 अ परफेक्ट स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क. इफ सो फाइंड नंबर हुज स्क्वायर इज 196. आपको बताना है कि क्या 196 परफेक्ट स्क्वायर है. तो अभी आपको टेबल में बता चुका हूँ, तो आप उसमें भी देख के बता सकते हैं, बट हम फाइंड कैसे करेंगे. मान लीजिए ये तो स्मॉलर नंबर है, ग्रेटर नंबर होता है तो कैसे फाइंड करेंगे. तो सोल्यूशन इज हेयर, रिजॉल्विंग 196 इनटू प्राइम फैक्टर्स बी गेट. व्हाट आर प्राइम फैक्टर्स? व्हेन बी factors of any number, we always start from 2 3 5 7 11 13 17. These all are numbers known as prime numbers. So we will first factors the number prime factors. Okay, 196 is equal to, here the factors of 196 is, here this is the factor of 196, 2 9s are
18 रिमाइंडर 1, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7. These are the factors of 196. So we can write it 2 multiplied 2 multiplied 7 multiplied 7. Thus 196 can be expressed as product of pairs of equal factors. Thus 196 can be expressed as a product of pairs of equal factors. Therefore 196 is a perfect square. अब आपको पता चल गया कि ये perfect square है. क्यों perfect square? देखिए, also 196 is equal to, we can write it 2 into 2. We can write it 2 to the power 2 as we studied in second chapter exponent, and 7 into 7, 7 to the power 2. अब देखिए एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ कुछ फार्मूले मैंने बताए थे. अगर दोनों देखिए बेसिस डिफरेंट है और पावर सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, सिंगल लेगी और दोनों को ब्रैकेट में लिख के मल्टीप्लाई करा लिया. 7 2 14 स्क्वायर. इट मीन्स 196 इज द स्क्वायर ऑफ 14. हैंस 14 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज 196. क्या क्लियर हुआ यहाँ से कि किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं, आपको पेयर बना लेने हैं. अगर पेयर बन रहा है तो दैट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर. इफ़ अब मान लीजिए कोई भी एक नंबर है, जैसे 2 into 2 लिखा हुआ है, into 7 लिखा हुआ है, तो देखिए 2 का पेयर हो गया 7. बट अगर एक भी नंबर एक्स्ट्रा हो जाए, मान लीजिए into 5 लिखा होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. बट into 5 लिखा होता यानी कि पेयर एक और बन गया, तो दैट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर. ओके, सॉरी. नेक्स्ट मूव करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स. हियर सब properties of square. Listen it carefully. Properties of perfect square. First property, a number ending in 2 3 7 or 8 is never a perfect square. If any number having unit digit 2 3 7 and 8, that will be not the perfect square. Some examples are given: 82, 93, 187, 248. In all these numbers unit digit is 2 3 7 8. अगर ये कहीं पे भी, ये भी जो डिजिट लिखी हुई है 2 3 7 8, अगर कहीं पे भी है तो दैट नंबर विल नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर. जैसे 87 लिखा हुआ है तो 87 क्या होगा, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. 88 लिखा है वो भी नहीं होगा. 23 लिखा है वो भी नहीं होगा क्योंकि 23 के लास्ट में क्या है 3. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सेकेंड प्रॉपर्टी, एंड नंबर एंडिंग एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर. द नंबर, अब देखिए जो भी नंबर जो होंगे वो क्या लिखा है, अगर लिखा हुआ है नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस, यानी कि जो जीरोस है वो ऑड नंबर टाइम लिखे हुए हैं. जैसे 160, देखिए जो नंबर लिखे हुए जीरोस लिखे हुए हैं वो ऑड टाइम लिखे, जैसे कि 160, तो 160 यानी कि 160, इसमें लास्ट में जीरो देखिए कितने लिखा है 1 टाइम. नेक्स्ट में देखिए 3 टाइम. नेक्स्ट में लिखा हुआ है 5 टाइम, यानी कि जो जीरोस लिखे हैं उनके जो नंबर ऑफ टाइम्स है वो ऑड टाइम है. इसीलिए क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे इस टाइप के नंबर. जैसे 100 के बाद में क्या होता है, 100 में 2 जीरोस है यानी कि इवन है, तो दैट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ अ नंबर when divided by 3 leaves a remainder 2, then it is not a perfect square. मतलब किसी भी नंबर को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर उसका 2 आता है तो दैट विल बी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. जैसे 170 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 15, रिमाइंडर 2, 3 6 18, रिमाइंडर विल बी 2. सो 170 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ अ नंबर when डिवाइडेड बाई 4 लीव्स अ रिमाइंडर 2 और 3, देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. मतलब कोई भी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर 2 और 3 है तो दैट विल बी नॉट परफेक्ट स्क्वायर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन. अगर कोई भी इवन नंबर है उसका स्क्वायर करते हैं तो हमेशा आपको इवन मिलेगा. जैसे 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64. ऐसे 12 का स्क्वायर 144, 144 इज आल्सो इवन नंबर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड. अगर किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आंसर आपको क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा. जैसे स्क्वायर ऑफ 1 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 1 3 5 7, दीज आर ऑल ऑड नंबर्स. 9 क्या है, एक ऑड है और इसका स्क्वायर करना है 81, तो दैट विल बी द आल्सो ऑड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको इस तरीके से मेथड समझ आ रहा है तो हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे. अदरवाइज जैसे हम प्रीवियस वीडियोज़ में आपको सॉल्व करके शो कर रहे थे, ठीक है, वैसे हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, राइट योर comment in comment box. Thank you for watching. Like and subscribe.